میں نے جلدی سے تیاریاں کیں اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس روشن دان پر نظر ڈالی جو واش بیسن کے بالکل اوپر تھا۔ یہ وہی روشن دان تھا جس سے مجھ پر حملہ کرنے والا سانپ باہر نکلا تھا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس روشن دان سے میرا جسم بآسانی دوسری طرف نکل سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی روشن دان منورما کے اس کٹہرے کے اندر تھا جس سے منورما رسی کے ذریعے دوسری طرف اتر جاتی تھی۔ میں نے واش بیسن کی مضبوطی کا اندازہ لگایا، پھر اپنے بدن کو تول کر بیسن پر چڑھ گیا۔ وہاں سے ہاتھ اوپر بڑھائے اور بآسانی روشن دان تک پہنچ کے میں ہاتھ مضبوطی سے جما کر روشن دان میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف جھانک کر دیکھا تو کسی قدر پریشان ہوا کیونکہ زمین ہاسی نیچے تھی۔ میں نے پرواہ نہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دی اور نیچے کود گیا۔ چوٹ لگی لیکن ایسی بھی نہیں کہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ میں نے پھولوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستہ وہی اختیار کیا جہاں سے منورما کو جاتے دیکھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں پھولوں کے کنج میں جا گھسا۔ احاطے کی دیواروں کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں سے مجھے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ کالے نقاب والا باہر ضرور آئے گا۔ میں اس کا پیچھا کر کے اس کا اصل ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوسری طرف کود گیا۔ اب مجھے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں خود کو پوشیدہ کر کے اس کی واپسی کا انتظار کروں۔ تقدیر نے یہ مشکل بھی حل کر دی۔ ایک بالکل ناکارہ اور ٹوٹے ہوئے ٹرک کا ڈھانچہ کچھ فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ بہترین جگہ تھی۔ میں اس کی طرف دوڑ گیا۔ اب میں آسانی سے خود کو پوشیدہ رکھ کر اس کا انتظار کر سکتا تھا۔ میری نظریں ادھر جمی ہوئی تھیں اور میں صبر آزما انتظار کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ منورما کا محبوب ہے اور اس سے ملنے آیا ہے۔ کافی دیر یہاں رکے گا، ممکن ہے صبح تک۔ لیکن اس وقت حیرت ہوئی کہ جب کوئی 25 منٹ کے بعد وہ اسی دیوار سے کودا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے ایک اور وجود دیوار سے کودا جسے اس نے سہارا دیا تھا۔ یہ منورما تھی۔ اس نے نیچے اتر کر جوتے پہنے اور پھر نقاب والے نے، جو چاقو چبند اور ورزشی بدن کا مالک نظر آ رہا تھا، منورما کا ہاتھ پکڑا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ میں خود کو سنبھال کر ان دونوں کے پیچھے چل پڑا۔ منورما بار بار لڑکھڑا رہی تھی لیکن اس کا ساتھی اسے مضبوطی سے سنبھالے ہوئے تھا۔ میں خود کو چھپاتا ہوا کامیابی سے ان کا پیچھا کرتا رہا لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بستی پیچھے رہ گئی اور اس کے آخری گھر کی روشنی بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں چلتے چلتے تھک گیا۔ پھر ایک مدھم سا شور کانوں میں ابھرا۔ یہ پانی کا شور تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ 100% یہ انسانی آوازیں تھیں۔ پھر کچھ اور انکشاف ہوا۔ بہت دور آسمان پر پیلی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن اس وقت بری طرح چونک پڑا جب اچانک وہ دونوں نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ یوں لگا جیسے وہ زمین کی گہرائیوں میں چلے گئے ہوں۔ میں نے تیزی سے دوڑ لگائی اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں دونوں گم ہوئے تھے۔ صورتحال لمحوں میں واضح ہو گئی۔ یہاں ڈھلان تھی جس کے اختتام پر ایک پرشور ندی بہہ رہی تھی۔ پانی کا شور اس ندی کے بہنے کا تھا لیکن دوسرے شور اور روشنیوں کا راز بھی مل گیا۔ ندی کے کنارے تھوڑے فاصلے پر جھونپڑوں کا شہر آباد تھا۔ بے شمار جھونپڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان انسان چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ کون ہیں؟ اور رات کے اس وقت یہاں چہل پہل کیوں ہے؟ بظاہر کوئی خانہ بدوش قبیلہ معلوم ہوتا تھا جو طویل عرصے سے یہاں آباد ہوگا۔ ان کے جھونپڑوں سے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ تو کیا منورما کا محبوب اس قبیلے کا کوئی فرد ہے؟ اس کا یہاں آنا تو یہی ظاہر کرتا تھا۔ اور پھر یہ ندی، اور اسی کے بارے میں امرتا کے ماما نے بتایا تھا کہ اس میں ہر سال باڑھ آتی ہے اور انسانوں کی بھینٹ لیتی ہے۔ کیا یہ خانہ بدوش یہاں مستقل آباد ہیں؟ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا لیکن منورما اور اس کا محبوب کہیں نظر نہیں آئے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ نیچے اتر کر میں ندی کے ساتھ ساتھ ان جھونپڑوں کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اس چہل پہل پر حیرت تھی۔ وہ روشنی ان جھونپڑوں کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ اسی طرف جا رہے تھے۔ آخر کار میں جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا لیکن ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دو لمبے چوڑے خانہ بدوش کسی طرف سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں نوکدار بھالے تھے۔ چہرے بڑے خوفناک تھے۔ ان دونوں نے میرے سامنے آ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ جے رام جی کی مہاراج۔ میں نے جواب میں دونوں ہاتھ جوڑے لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ تب ان میں سے دوسرا بولا، پہرے دار ہیں ہم۔ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟
तुम्हारी बस्ती में मेहमान हूँ, डॉक्टर हूँ और पेश इमाम जी के मेहमान, उसने कहा और मैं दंग रह गया। अरे तुम्हें मालूम है, उन्हीं के बीच रहते हैं महाराज, और फिर पेश इमाम को सभी माने हैं, सब के सच्चे साथी, सब के काम आने वाले। पर महाराज आप इधर कैसे निकल आए? बस दिल चाहा, आज मौसम बहुत अच्छा है। आज नाग पंचमी है महाराज, हमारा त्यौहार। आज हम नाग देवता की पूजा करते हैं। आज कोई बाहर वाला इधर नहीं आता। हम पहरा देते हैं और किसी बाहर से आने वाले को अंदर नहीं आने देते। अच्छा ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। मैं वापसी के लिए मुड़ा। उनमें से एक ने कहा रुकें बाबूजी। मैं रुक गया तो दूसरे ने कहा स्वामी से पूछ लो, पेश इमाम जी के मेहमान हैं और तुम्हें मालूम है कि स्वामी इमाम जी को देवता समान मानते हैं। तुम ठहरो, मैं पूछ के आता हूँ, दूसरे ने कहा और तेज तेज कदमों से एक तरफ चल पड़ा। उसके बाद खामोशी तारी रही। अलबत्ता मेरी नज़रें अब भी मनोरमा और उसके महबूब को तलाश करने में भटक रही थी, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मैंने पहरेदारों से उनके बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद पहरेदार वापस आ गया और उसने अदब से कहा, आइए महाराज, स्वामी ने आपको बुलाया है। मैं उसके साथ चल पड़ा। झोंपड़े बेतरतीब बने हुए थे। उनमें से ज्यादातर के सामने अहाते थे जिनमें जानवर बंधे हुए थे। आखिरकार झोंपड़ों का सिलसिला खत्म हुआ और एक बड़ा सा अहाता नजर आया जो खास किस्म की कद्दे आदम घास से भरा हुआ था। अजीमुशान अहाते में तवीलो अरीज दायरा बनाए लातादाद इंसान बैठे हुए थे। फटे पुराने मैले कुचैले लिबास में मलबूस मर्द, औरतें और बच्चे। ऊंचे ऊंचे बांस बंधे हुए थे जिन पर मशालें रोशन थीं और दूर से मुझे रोशनी नजर आ रही थी। एक तरफ एक चौकी बिछी हुई थी जिस पर एक कवी हैकल शख्स बैठा हुआ था। ये खासी मकूल शख्स था, क्लीन शेव था और आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। मुझे उसके पास ले जाया गया तो वो तख्त से नीचे उतर आया। झुक कर दोनों हाथ जोड़े, फिर तख्त की तरफ इशारा करके बोला, पधारिए महाराज। आप स्वामी हैं? मैंने पूछा। दास हूं आपका, आइए, उसने कहा और मैं तख्त पर बैठ गया। उस वक्त वहां मौजूद जम्मे गफीर मुझे ही देख रहा था। स्वामी मेरे पास बैठ गया और बोला, आज नाग पंचमी का त्यौहार है। हम रात को चांद निकले नाग देवता की पूजा करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था, वरना इधर का रुख करके आपको परेशान ना करता। कोई बात नहीं, मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं। बस पहरा इसलिए लगाया है हमने कि बस्ती के बिगड़े हुए लड़के दारू पीकर हुल्लड़ मचाने आ जाते हैं। ये हमारा खास त्यौहार होता है और कोई सपेरा दारू नहीं पीता। आप सपेरे हैं? हाँ, हम हबोड़े हैं, सांपों का काम करते हैं, लेकिन वो नहीं जो दूसरे सपेरे करते हैं। क्या मतलब? मैंने दिलचस्पी से पूछा। हम नाग पकड़कर खेल तमाशे नहीं दिखाते फिरते, बल्कि उसके जहर का कारोबार करते हैं। अच्छा, वो कैसे? बड़ी बड़ी लिबार्ट्रीज को दवाएं और दूसरी चीजें बनाने के लिए सांपों के जहर की जरूरत होती है। हम उन्हें सांपों का जहर सप्लाई करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। कब से तुम ये काम कर रहे हो स्वामी जी? अब तो कोई 20 साल हो गए। क्या मतलब? तुम्हारे बुजुर्ग ये काम नहीं करते थे? नहीं, उस वक्त ये काम नहीं था। अपने कबीले में ये काम मैंने शुरू किया। मुझे बीन बजाकर सांप दिखाना पसंद नहीं। इसकी वजह यह थी कि मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था। हाँ, दूसरा सवाल मैं तुमसे यही करना चाहता था कि तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो। बीए किया है मैंने। वैसे मेरी पुश्तों में से किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। मैंने ये अनोखा काम किया। दूसरा काम मैंने ये किया कि इस तरह जहर बेचना शुरू कर दिया। हम लोग सांप पकड़ते हैं और उसका जहर निकाल कर उन्हें छोड़ देते हैं। बस यही हमारी रोजी है। इससे तुम्हारी पूरी आबादी का गुजारा हो जाता है, जबकि कबीला काफ़ी बड़ा है तुम्हारा। ये सब हमारे कबीले के लोग नहीं। तो फिर आज हमारा त्यौहार है। बहुत से सपेरों के कबीले नागपंचमी मनाने हमारे कबीले में आ जाते हैं। क्योंकि हाँ, बताओ क्यों आ जाते हैं? क्योंकि शीश नाग हमारे कबीले में है, नागों का सरदार शीश नाग, और वो भी इच्छाधारी। अभी स्वामी ने इतना ही कहा था कि एकदम बैठे हुए लोग खड़े हो गए। आसमान पर चांद उबर रहा था। स्वामी ने कहा, आप आराम से यहाँ बैठकर हमारी पूजा पाठ देखो, हमें खुशी होगी। मैं पूजा में शरीक हूँगा। अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई तो मैं चलता हूँ। मेरी खुशी होगी अगर तुम हमारा त्यौहार देखो, उसने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। मुझे भी ये सब अनोखा और खुशगवार लग रहा था। मैं यहाँ रुक कर देखना चाहता था, चुनाचे मैं खुशी से यहाँ रुक गया। सपेरे इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे थे। चांद रोशन होता जा रहा था।
इस तमाम हंगामा आराई के दौरान मेरी आंखें मुसलसल उन दोनों को तलाश कर रही थीं, लेकिन अभी तक वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। अलबत्ता मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि मनोरमा का महबूब कोई नौजवान सपेरा है, और इस वक्त भी वो मनोरमा यानी अपनी महबूबा को अपने त्यौहार में शिरकत के लिए लाया है। मगर वो दोनों कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे। सपेरे भाग दौड़ करते रहे। फिर उनके अंदर तंजीम पैदा होने लगी। वो कतारें बनाने लगे। उनके साथ औरतें भी शरीक थीं, बच्चे भी थे। कतारें एक खास तरतीब से बनाई जा रही थीं, जिनसे अंदाज़ा हो गया कि हर कबीले के लोग अलग अलग कतारें बना रहे हैं। सबसे आगे नौजवान लड़कियां थीं जो फूलों के लिबास पहने हुए थीं और खूब सजी हुई थीं। उनके सामने फूलों के अंबार लगे हुए थे, जिनकी खुशबू से सारा माहौल मुअत्तर था। अब चांद पूरा निकल आया था और फ़ज़ा खूब मुनव्वर हो गई थी। बेशुमार अफराद थे, लेकिन गहरी खामोशी छा गई थी। उसके बाद सामने के हिस्से में कुछ हलचल सी हुई। फिर फूलों की बेलों के पीछे से कुछ लोग नमूदार हुए। उन्होंने अपने कंधों पर एक तख्त उठाया हुआ था जो बेहद सजा हुआ था। उस तख्त पर कांसी का एक मुजस्मा रखा हुआ था जो सांप का हैबतनाक मुजस्मा था। तख्त एक जगह रख दिया गया। हैबतनाक मुजस्मे की आंखों की जगह दो सुलगते हुए याकूत लगे हुए थे, जिनसे शुआएं खारिज हो रही थीं। कांसी का मुजस्मा कोई 10 फुट के लगभग ऊंचा था और एक निगाह देखने से जिंदा लगता था। फिर उसमें सचमुच जिंदगी बेदार हो गई। तख्त पर बाएं तरफ से एक काला नाग ऊपर चढ़ आया। सांप बेहद लंबा था। उसका काला लचकीला बदन कांसी के मुजस्मे के पैरों में ढेर होता जा रहा था। फिर उसने फन उठा लिया। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने आंखें फाड़कर उस खौफनाक सांप को देखा। उसके फन के दरमियान 2 सफ़ेद धारियां मौजूद थीं। उस सांप को मैं कभी नहीं भूल सकता था। उसने मुझे जगह जगह काटा था। मैं बच गया था, लेकिन उसने मुझे ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये वही सांप था जिसने मुखिया सिंह की हवेली में मुझ पर हमला किया था। फिर कुछ सपेरे आगे बढ़े और सांप के मुजस्मे के सामने सजदे में गिर पड़े। वो कुछ बोलते जा रहे थे। वो उठे तो आने वालों ने मुजस्मे के पैरों में फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। ये रस्में आखिरकार ख़त्म हो गईं। लोग अपनी जगह जा बैठे। मेरा दुश्मन सांप फन डालकर वापस उसी तरफ से नीचे उतर गया। कुछ देर खामोशी तारी रही। फिर लड़कियां खड़ी हो गईं। बड़े बड़े चंग लाए गए। उन पर थाप पड़ी और लड़कियां रक्स करने लगीं। रक्स और मौसीकी अरूज पर पहुंची तो मेरी नज़र एक तरफ उठ गई। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। पत्थर की एक चट्टान पर मनोरमा एक नौजवान के साथ बैठी थी। ये नौजवान मर्दाना हुस्न का बेमिसाल नमूना था। इतना हसीन और पुरकशिश के जो देखे देखता ही रह जाए। दोनों पास पास बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर मोहब्बत के आसार थे। वो बड़ी दिलचस्पी से रक्सो मौसीकी देख रहे थे। मेरा सर चकरा कर रह गया। बहुत देर तक बैठा रहा। फिर उस माहौल से उकता गया। अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ, लेकिन उसी वक्त स्वामी किसी तरफ से निकलकर मेरे पास आ गया। माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर जी, बस आज वो नहीं। स्वामी जी, मुझे अंदाज़ा है आपकी मसरूफियत का। एक इजाज़त आपसे ज़रूर चाहता हूँ। हुक्म दें, आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं हमेशा आपके स्वागत के लिए तैयार रहूँगा। कल तो आप थके हुए होंगे। परसों दिन में आपके पास आऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगा। स्वामी मुझे अपने इलाके की आखिरी सरहद तक छोड़ने आया। नदी के किनारे एक तवील सफ़र करना था। पूरे वजूद में थकन हो रही थी, लेकिन चलता रहा। फिर अचानक दुल्हा बाबा का ख्याल आया। मैंने रुख बदल लिया। हिस्सेपुर के रास्ते अब मेरे लिए अजनबी नहीं थे। फासला काफ़ी था, लेकिन आखिरकार मज़ार पर पहुंच गया। फिर एक जगह दरख्त के नीचे लेट कर सो गया। दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। नींद ने आगोश में लेकर इहसान किया। जागा तो खूब धूप निकल आई थी, लेकिन खुद नहीं जागा था। नसीबुल्लाह का चेहरा सामने नजर आया। उसने मुझे जगाया था। माफ़ी चाहता हूँ, आप पूरी तरह धूप की लपेट में थे, इसलिए जगाने पर मजबूर हो गया। 12:30 बज चुके थे। अरे मैं घबरा कर उठ गया। नसीबुल्लाह से कुछ फासले पर बगी खड़ी हुई थी, जिसके करीब मुखिया सिंह नजर आ रहा था। मेरे सिलसिले में तो हासी हंगामा आराई हो गई। आइए, मैं आगे बढ़कर बोला और बगी के करीब पहुंच गया। आप ठीक हैं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं और मेरी पत्नी जब मनोरमा के लिए नाश्ता लेकर पहुंचे तो आपके कमरे का दरवाज़ा बंद था, जबकि आप आमतौर से सुबह जाग जाते हैं। पता चला कि आपने नाश्ता भी नहीं किया।
दरवाज़ा खूब बजाया गया, ना खुला तो बड़ी परेशानी हुई। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलवाया तो आप अंदर मौजूद नहीं थे। पूरी हवेली में आपको तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला तो बुरी तरह घबरा गया। बगी लेकर आपको तलाश करने चल पड़ा। फिर मस्जिद से नसीबुल्लाह को साथ लिया और कई जगह घूमकर आखिरकार उनके मशवरे से यहाँ आ गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बस यहाँ आना था। मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुखिया सिंह ने एहतरामन कोई सवाल नहीं किया। ये लोग मेरी रूहानियत के कायल थे, इसलिए बात बन गई। चलें, मुखिया सिंह ने कहा। हाँ, मुझे मस्जिद छोड़ दें, नसीबुल्लाह बोले। नहीं पेश इमाम जी, रोटी हमारे साथ खाएं। डॉक्टर साहब ने तो नाश्ता भी नहीं किया, कोई तकल्लुफ़ तो है नहीं, नसीबुल्लाह बोले। इसीलिए कह रहा हूँ, मुखिया ने कहा और हम बग्गी में बैठकर चल पड़े। मेरे जहन में बेशुमार सवालात मचल रहे थे लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। मनोरमा के बारे में पूछना चाहता था कि वो कहाँ है, कैसे वापस आई थी। जब ये लोग नाश्ता लेकर गए थे तो उसकी कैफियत क्या थी, लेकिन जो कुछ देख चुका था वो बताना मुमकिन नहीं था। मुखिया सिंह कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार था लेकिन उसने कोई बात नहीं की। नसीबुल्लाह ने खाने के बाद इजाज़त मांगी तो मुखिया सिंह ने कहा, बग्गी में चले जाइए इमाम जी। अरे नहीं मुखिया जी, चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मुखिया ने उन्हें बग्गी में ही भेजा। फिर उसने कहा, रात आपने मज़ार शरीफ पर गुजारी है, बेआराम होंगे, सो जाएं कुछ देर। आप दरवाजे से नहीं गए? ज्ञान वालों के लिए दीवारें और दरवाजे क्या हैसियत रखते हैं। वैसे एक बात पूछूं? पूछें। दुल्हा बाबा क्या कहते हैं मेरी मनोरमा के बारे? कोशिश इंसान का फर्ज है, बाकी काम ऊपर से होते हैं। आपको एक काम करना है, बताइए। मुझे मनोरमा के लिए खून की ज़रूरत होगी, जितना हुक्म करें मिल जाएगा। कब चाहिए? परसों, मैंने जवाब दिया। मैं बंदोबस्त करूँगा। फिर मैं आराम करने के लिए लेट गया। रात आंखों में चुभ रही थी। जो देखा था वो बहुत अजीब था। सपेरे काफ़ी दूर रहते थे लेकिन उन्हें इमाम साहब के मेहमान के बारे में मालूम था। उनका जश्न, उनकी रसूमात और फिर वो सांप। मैंने उसे पहचान लिया था लेकिन वो मुझ पर हमला आवर क्यों न हुआ। एक बार फिर नींद आ गई। मगरिब के वक्त जागा और नमाज पढ़ी। फिर एकदम दिल में ख्याल आया कि मनोरमा से मिलूं। सीधा उसके पास जा पहुंचा। वो मुसहरी पर लेटी हुई थी। मुझे देख कर मुँह बना लिया। कैसी हैं मनोरमा जी? दिल की बात बताऊं? बताइए। मुझे तुमसे नफरत है। क्यों? मैंने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तरकेशी को भी तुमसे नफरत है। वजह नहीं बताई उसने। मैंने पूछा लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। करवट बदल कर ऐसे लेटी गोया मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मैं कुछ लम्हे रुक कर वापस चला आया। जहन में शदीद कुरेद थी। क्या है ये सब? बड़ी पुरस्रार और अजीब कहानी थी। तरकेशी सपेरा है, कितना खूबसूरत नौजवान है। कोई भी लड़की उसे देखकर दीवानी हो सकती है। कोई भी। तबीयत बोझल हो गई। हकीम अहमद को तलाश करके उसके पास पहुंचा और कहा, हकीम भाई, रात का खाना नहीं खाऊंगा। खैर है सरकार? नहीं, बस तबीयत पर कुछ गिरानी है। खिचड़ी बना दूं? नहीं शुक्रिया, रात का खाना ना खाना बेहतर रहा। सुबह को तबीयत खुशगवार थी। दूसरी सुबह नाश्ते के बाद मुखिया सिंह के पास आ गया। वो हकीम अहमद बता रहा था कि आपने रात का खाना नहीं खाया। हाँ, बस तबीयत कुछ बोझल थी। एक काम मुमकिन है मुखिया सिंह जी? हाँ हाँ बताइए। मैं नदी किनारे सपेरों की बस्ती में जाना चाहता हूँ। अरे अच्छा, ज़रूर। मुखिया सिंह के अंदाजे से पता चलता था कि वो इस बारे में मज़ीद पूछना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं उसे कुछ बता भी नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा। मुखिया ने फौरन ही दोबारा कहा, आप बग्गी पर चले जाएं। शुक्रिया मुखिया जी। मुझे इत्मीनान हो गया। मैं वहां जाकर स्वामी से मिलना चाहता था लेकिन फासले से घबरा रहा था। अब ये अच्छा हो गया था। चुनाचे मैंने तैयारी शुरू कर दी। बाहर निकलने के लिए तैयार था कि मुखिया सिंह मेरे पास आ गया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रात तक वापस आऊँगा। खैरियत है? मैंने पूछा। हाँ, खून का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। बात हो गई है, काम मुझे खुद करना है, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। नहीं, तमाम काम पूरे हैं। मैं चल पड़ा। रास्ते में मैंने कोचवान से पूछा, अमृता का क्या हाल है, कैसी है वो? बस जी, अब ठीक है। अब तो सांगी के घर भी नहीं जाती, अपने ही घर में बैठी कीर्तन करती रहती है। मेरा दिल गम में डूब गया। माबूदे आलम, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कभी एक ऐसा लफ्ज़ भी नहीं कहा जिससे वो भटक जाए।
اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ دلہا بابا کے مزار پر جا کر دعا کروں گا کہ اس معصوم لڑکی کے ذہن سے میرا خیال نکل جائے